Okay, let's start with prayers. Just let's say together, okay? Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Yes. Jai Srila Now, Prabhupada. yes. Now, would you like to sing Hare Krishna Mahamantra 3 times? Okay, Mataji, yes. Okay, go ahead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good. Jai Srila Prabhupada. We are yet to complete little bit on the health tips part, okay? So I was very tied up, so we could not do it, like I could not complete it today. So we'll complete that topic next week. Okay. Meanwhile, in today's session, we'll talk about how time is divided, the Vedic time. Okay. Broad division we'll talk about. First, can you see this slide? Yes, Mataji. Okay. So the time that we know is like hours, minutes, seconds, milliseconds, right? So in broader, division according to the Vedas or as per Vedic time, universally the time is divided into yugas. There are 4 major divisions. Okay. One is Satyug, then Treta Yug, then Dwapar Yug, and then Kali Yug. Have you heard of Kali Yug that nowadays, yes, what is going on? स्कूल असेंबलीज में कभी बार स्पेशल असेंबली तो कलयुग का वर्ड बहुत बार आता है. कलयुग का आता है ना. तो अब आप देखिए कि अब ये जो मेजर डिविजन्स हैं, इसके जो हमारे जो ईयर्स है, अर्थ पे जो टाइमिंग की कैलकुलेशन है, उसके नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से हाउ इट इज डिवाइडेड. कैन यू सी दैट कलयुग, आपने पाई चार्ट, कैन यू सी द पाई चार्ट ऑन द राइट हैंड साइड? सो यू वुड नोटिस दैट कलयुग इज shortest, right? Followed by Dwapar, then followed by Treta, and then Satyug. Okay. Now, what is the duration of this Kali-Yuga? Duration of Kali-Yuga is 4,32,000 years. We have denoted it as X in the table. So total 4,32,000 years is the duration of Kali-Yuga. And currently approximately 5123 years. In fact, this is data of maybe a couple of years back. So approximately we would say that nearly 5,000 years of Kali-Yuga have passed. Then approximately 4,27,000 are remaining. Right? Round figure जब हम करते हैं. Okay. So this is denoted with X. Now Dwapar is 2X. So that means 4,32,000 into 2 is what? 8,64,000. So that is Dwapar Yuga. And then we have Treta Yuga, which is 3X. Then Treta Yuga is 3X. 4,32,000 multiplied by 3. 12,96,000. Okay, I'm going to share this in the slide set. Okay, and then Satyug is what? 4 times of X. So 4 into 4,32,000, that is 17,28,000. Now if you add all 4, 4x plus 3x plus 2x plus x is what? 10x. Right? Do you know these basic calculations of x? Have you been taught in school? Like x plus x is 2x, x plus 2x is 3x, like that? Do you understand this? Yes, Mataji. So that means Kali-Yuga is what? 10% of the total Yuga cycle. So this total Yuga cycle is Chatur Yuga. The total Yuga cycle is known as Chatur Yuga. Chatur means, in Sanskrit, Chatur means 4. 4. Okay, so 4 yugas, when we combine together, is known as Chatur Yuga. Okay, so when we compare the percentage of Kali Yuga with respect to Chatur Yuga, it is what? Okay, Mataji. 10%, right? And Dwapar is 2 times. So 20%, Treta is 3 times, 30%, and Satyug is 4 times, 40%. So this is clear to you? Yes, Mataji. Yes, Mataji. सारे युग क्लियर है. हाँ, युग क्लियर है ना. तो अब देखो कि अब ये तो क्या हो गई कि
ब्रॉड डिवीजन हो गई, बट वी शुड नो ना what are specific qualities of these योग, राइट? Yes. अब डेफिनेटली अगर इतनी इतनी ड्यूरेशन है, कुछ डिमार्केशन है इनमें ड्यूरेशन की, तो डेफिनेटली और क्वालिटीज में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी, और उसी के रेस्पेक्ट में कुछ होगा ये डिमार्केशन, ठीक है? Yes, Mata. Now this duration that we talked about, that is the duration of the entire yug. Now what is the lifespan of individuals 100 years. every yug? That we have to see. देखो सतयुग में 100 years is in कलयुग, ओके, ये ठीक है, इसी को आप बेस मान के चलो, 100 years कलयुग. Now multiplied by 10, द्वापर will be how much? 1000 years. 1000 years. Treta will be how much? 10,000 years. And Satyug will be 1 lakh years. 1 lakh years. Okay. So this is the lifespan duration in each of the युगा. अब आप अगर आज की डेट पे कलयुग की बात करें, you would find very few people, very rarely people cross 100 also. Life expectancy कितनी है? 85. Life expectancy in India, okay, just let us check for India how much it is. So it is 67. US it is 77, Japan 84. तो अगर आप देखें तो 100 तो टच ही नहीं कर रहे हैं. We'll find very rarely, people crossing or touching 100, nearly 100. Yes, माता जी. Okay. अब इसका भी रीजन है, ठीक है, that we'll understand. तो ये तो आपका ड्यूरेशन हो गया. अब we'll understand the reason that why we are not able to touch this lifespan of 100 years. Now how the people are, quality in people in each yug, okay, qualities. So here in Satyug, people are peaceful, non-envious, sweet, and naturally Krishna conscious. That means they follow dharma. Okay. Right? अब यहाँ क्या होता है कलयुग में? कलयुग में अकॉर्डिंग श्रीमद् भागवतम, ओके, धर्म की रेस्पेक्ट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि कलयुग में क्या है? कलयुग में मेरे सब तो हाफ है कि आधे लोग धर्म में बिलीव करते हैं और आधे लोग नहीं करते. धर्म में लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है. तो जो भागवतम में डिस्क्रिप्शन है ऑफ द पीपल ऑफ कलयुग, सो एज पर भागवतम, people in Kalyug have short lives, okay, they are quarrelsome, they are lazy, misguided, unlucky, and envious. Yes, envious भी है, always disturbed, definitely envious भी आएगा यहाँ पर, ठीक है. तो these are the different qualities of people in Kalyug. अब देखो धर्म के ना, there are 4 pillars of धर्म that we'll study. I will tell you also in the next slide. We'll do that. और क्या होता है कि धर्म के पिलर्स जो होते हैं वो ब्रेक होते जाते हैं as we go from Satyug to Kalyug. So that means when we are not following dharma or when we are not following a regulated life as it is suggested for human beings, then the result is that our lifespan is reduced. तो यहाँ पर सब धर्म का पालन कर रहे हैं, so they have such a long life. But यहाँ पर क्योंकि धर्म का पालन नहीं करे तो लाइफ इज लेस, ठीक है. अब यहाँ देखते हैं त्रेता. त्रेता में पीपल आर थॉरोली रिलीजियस, सो पीपल आर रिलीजियस, इसमें भी है, ठीक है, एंड दे फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. दे फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स मतलब कैसा आहार करना चाहिए, है ना. तो रेगुलेशन में क्या क्या आता है, तो आपका बिहेवियर आ जाएगा, आपका फूड आ जाएगा, तो सब कुछ ओवरऑल कि किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए, दैट दे फॉलो इन त्रेता युग. ओके ओके. द्वापर में थोड़ा वीकनेस आएगा क्योंकि यहाँ पर जाते हुए क्या हो रहा है, एज वी मूव फ्रॉम सतयुग टू कलयुग तो हमारा धर्म तो रिड्यूस हो ही रहा है ना. तो यहाँ पर
सम वीकनेस एग्जिस्ट हियर, हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू धर्म, ओके, बट दे हैव एग्जिस्ट हियर विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स फॉर ह्यूमंस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन द्वापर सम वीकनेसेस एग्जिस्ट with respect to principles for human beings. Let us write like this. Okay? But यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है, एक गुड चीज यहाँ पर क्या है कि but people have desire to know about God, about the absolute truth. अब आपको क्या होता है absolute truth हम बताएंगे, but आप God समझो अभी, ठीक है? About God, ठीक है? ये अब यहाँ पर क्या हो गया, कलयुग में तो वो तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब इसमें एक चीज और समझने की बात है। अच्छा, धर्म के पिलर्स हमने करने हैं, उसके पहले एक चीज हम और करते हैं यहाँ। व्हाट इज द युग धर्म? व्हाट इज द युग धर्म? तो युग धर्म क्या होता है? अब हमने क्या बात की, अभी हमने इतना स्पिरिचुअल अभी किया नहीं है, बट क्या होता है कि हमारे लाइफ का जो पर्पस है ना, पर्पस ऑफ लाइफ इज व्हाट। अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी उस पर नहीं आते हैं, वो बहुत, उसको हम अलग से डिस्कशन में लेंगे, बट अभी के लिए समझिए सतयुग में युग धर्म क्या होता था? मेडिटेशन। सो इन सतयुग पीपल यूज टू मेडिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, 50,000 60,000, अभी 1 लाख की तो एज है, 50-60,000 ईयर्स ये लोग मेडिटेट करते थे, और मेडिटेशन से ये भगवान को प्राप्त करते थे। ओके, और त्रेता में क्या होता था? फायर सैक्रिफाइस, यज्ञ। अब त्रेता में राम जी आए थे, याद है ना? यस मदर। तो उसमें अश्वमेध यज्ञ हुआ था, है ना? अश्वमेव यज्ञ। कौन सा यज्ञ? मुझे 7th के स्टार्टिंग में पढ़ा था, कोई हॉर्स का था वो सैक्रिफाइस, जिसके अंदर हाँ एग्जैक्टली, उसको अश्व, अश्व मतलब हॉर्स की बलि दे। ठीक है, तो अब उससे आपको याद हो जाएगा कि यज्ञ, यहाँ पर यज्ञ होता है, ठीक है। और द्वापर में क्या होता है? डीटी वर्शिप, अर्च विग्रह। डीटी को क्या कहते हैं? अर्च विग्रह, जो भगवान की अर्च विग्रह होता है, मतलब मूर्ति, अर्च विग्रह उपासना। लेकिन भगवान की जो मूर्ति है ना, वो उसको कहते हैं अर्च विग्रह, मतलब विग्रह मीन्स फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज विग्रह। और अर्च क्या होता है? जिनकी अर्चना करी जाती है, जिनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये आइडल वर्शिप नहीं है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस। लोग कहते हैं तुम तो आइडल वर्शिप करते हो, है ना? यस। बट ये आइडल वर्शिप नहीं है, ये अर्च विग्रह वर्शिप है, वेयर द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज मेड अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन इन द वेदास। अब ये जो कृष्णा का फॉर्म है कि वो बांसुरी लेकर के कर्व्ड जैसे खड़े होते हैं कृष्णा, और बांसुरी लेकर के, ये जो भगवान का फॉर्म है, दैट इज गिवन इन ब्रह्म संहिता, मतलब वेदों से डिस्क्रिप्शन ले करके ये विग्रह बनाए गए। अच्छा, ठीक है, यू अंडरस्टैंड? ये आइडल वर्शिप नहीं है। आइडल क्या होते हैं? आप रोड्स पे देखो, यहाँ वहाँ बड़े बड़े नेताओं के, लोगों के बहुत बड़े बड़े वो बनाए होते हैं, लेकिन क्या उनको मेंटेन किया जाता है? आप गार्डन्स में भी देखते हो, बट आर दे मेंटेन्ड? नो। उधर तो पक्षी घूम रहे होते हैं, पक्षी बीट कर रहे होते हैं, है ना? कितना डर्टी कैसे वो मेंटेन्ड, मतलब मेंटेन नहीं है, कितने डर्टी रहते हैं। तो दैट इज आइडल। बट यहाँ के अर्च विग्रह, तो यहाँ पर भगवान के फॉर्म, उनको क्या मेटल से या वुड से, है ना, या मिट्टी से ऐसे बना करके फिर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। आप देखते हो लड्डू गोपाल के कैसे कपड़े पहनाते हैं अच्छे अच्छे, उनको तैयार कराते हैं, है ना, भोग लगाते हैं। तो इसको कहते हैं अर्च विग्रह उपासना। अब इसका भी पूरा लॉजिक है, इट इज गिवन इन श्रीमद् भागवतम। तो ग्रेजुअली वी स्टडी, बट दिस वाज द मोड ऑफ वर्शिप इन द्वापर युग। एंड कलयुग इज व्हाट यू हैव हर्ड, कलयुग केवल नाम आधार, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और कलयुग के लिए कौन सा मंत्र है चैंटिंग का? हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र। ओके, तो अब ये देखो, अब देखो मेडिटेशन पॉसिबल है कलयुग में?
नहीं, लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता करने के लिए। 1 घंटा भी कर पाते हैं? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15-30 मिनट्स। हाँ, तो फिर दिस मेथड is not recommended for Kalyug because the Lord knows that we won't be able to manage. क्योंकि हमारी क्वालिटीज ऐसी हैं यहाँ पर, एक तो हमारी लाइफ भी शॉर्ट है ना, तो हम तो वैसे ही नहीं कर सकते अगर लाइफ के हिसाब से भी देखें। और फिर जो हमारे अंदर इररिलीजियस क्वालिटीज है करने देती। हाँ, वो नहीं करने देगी, है ना। अब त्रेता में होता है फायर सैक्रिफाइस। अब इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, उनमें इतना सारी यज्ञ की सामग्री चाहिए होती है। अब आपने जब हॉर्स सैक्रिफाइस पढ़ा था राम जी के टाइम में, अश्वमेध यज्ञ, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, इसको जानने की कोशिश करोगे, तो ये सैक्रिफाइस में इतना धन लगता है, इतनी सामग्री लगती है, तो वो भी कलयुग में एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना महालक्ष्मी यज्ञ करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो जो रियलिटी में जो यज्ञ में जो भी इनपुट्स चाहिए वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये भी सजेस्टेड नहीं है कलयुग के लिए। और द्वापर में क्या है, अर्चा विग्रह वर्शिप। अभी अर्चा विग्रह वर्शिप चल रही है ना, क्योंकि अभी ट्रांजिशन, अभी क्यों चल रही है, क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज है, द्वापर युग टू कलयुग। आपने वो सुना है डस्क और डॉन? डस्क, डॉन जब सन राइज होने वाला होता है, और डस्क क्या होता है? जब सन सेट होने वाला होता है, जब नाइट होने वाली होती है। हाँ, परफेक्ट। तो dawn is a kind of a transition time between the night and the morning. Can we say that? Yes. And this is the transition time between the day and night, right? Similarly, whenever there is a switch over of yug, like द्वापर से अब जैसे अभी कलयुग आया, there is some duration of the overlap. तो ये जो 5000 years अभी चल रहे हैं, अभी आगे भी कुछ साल जो होगा, ये overlapping period है द्वापर युग to कलयुग. So that is why you would see deity worship also being done at this point of time. But later on when the कलयुग progresses further, तो ये जो deities होंगे ये लुप्त हो जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे. बट दिस इज संध्या. तो इसे अभी जो ड्यूरेशन है इसको क्या कहते हैं टेक्निकली, ये है संध्या. कलयुग की अभी संध्या चल रही है, जस्ट बिगन हुआ है ये, ठीक है. अब अर्चा विग्रह की भी उपासना के लिए जितना चीजें चाहिए होती है, जितना कुछ, एक्चुअली द्वापर में जब ये अर्चा विग्रह की उपासना होती थी, उसमें भी जो भी सामग्री भगवान को ऑफरिंग करते थे, तो वो भी बहुत ऑप्युलेंट तरीके से वो होती है, जो बहुत ज्यादा धन धान्य से संपन्न होते हैं, वही अर्चा विग्रह की उपासना को वास्तव में सही तरीके से कर सकते हैं. तो कलयुग में भी कोई इतना धन धान्य संपन्न है ही नहीं, तो ये भी अभी. और दूसरी चीज क्या है, आप ये सोचो, डीटी वर्शिप की बात करो, चाहे फायर सैक्रिफाइस की बात करो, तो जो शुद्धि चाहिए, जो स्वच्छता चाहिए, क्या वो है आज की डेट में? नहीं है. आपने खुद ही घरों में पूजाओं में देखा होगा, तो पंडित लोग क्या बताते हैं, अच्छा ये नहीं है तो इससे काम चला लो, ऐसे कहते हैं ना. हाँ. और जैसे हम कहीं सुनते हैं, जैसे मान लो कहीं पर किसी पे गोल्ड को डोनेट करना है, तो कहते हैं गोल्ड के बदले सफेद तिल डोनेट कर दो, मतलब वर्क अराउंड बनाए हुए हैं. आप समझे चीज? तो आप सोचो कि जहां पर हम वर्क अराउंड बनाएंगे, मतलब वर्क अराउंड मतलब जुगाड़, तो क्या वो वास्तव में वैसा रिजल्ट देगा आपको? नहीं, वो वैसा ही जुगाड़ टाइप का रिजल्ट देगा. हाँ, अब हमने पढ़ाई करनी है, हमने सोचा कि भाई पूरा चैप्टर ना पढ़ के जो लास्ट में पॉइंट्स लिखे हैं बस जुगाड़ की तरह वो पढ़ लेंगे 15 पॉइंट, तो क्या बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे? हमें समझ नहीं आएगी. तो वही चीज है, तो उतनी ना शुद्धता है ना स्वच्छता है. शुद्धता क्या होती है, अब स्वच्छता को आप क्लेanलीनेस लो, लेकिन शुद्धता में आप लो इंटरनल क्लेanलीनेस भी आप उसमें लाओ. शुद्धता, प्योरिटी, इंटरनल प्योरिटी भी है ना. स्वच्छता तो क्या होती है, क्लेanलीनेस, तो वो भी नहीं है. प्लस वैसे आपको पंडित भी नहीं मिलेंगे जो आपको उस तरीके से उस लेवल पे ये चीजें करवा सके. आप सबसे, आप ये चीज देखो कि भगवान की मर्सी देखो, कलयुग में हम सबसे ज्यादा डिग्रेडेड हैं एज कम्पेयर टू सतयुग, त्रेता, द्वापर. और यहाँ पर लेकिन भगवान को पाने का ये जो युग धर्म है ना, युग धर्म मीन्स कि कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट वी शुड फॉलो इन द स्पेसिफिक युग सो दैट वी कैन अटेन गॉड. तो यहाँ पर जो युग धर्म है ये सबसे सिंपल है. लग रहा है सिंपलेस्ट कि सिर्फ चैंटिंग करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र गाना है. तो भगवान भी हमारी क्या लिमिटेशन जानते हैं कि ये सब चीजें जानते कि हम लेजी हैं, इससे हो जाता है आराम से. एग्जैक्टली. और आप देखो भगवान, इससे क्या पता चलता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, है ना.
उन्होंने कोई चीज ऐसी बेटा बनाई नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसी, अगर कोई लोग कहें अरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जो हमारे परम पिता हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो जो हमारे एटर्नल फादर है, सुप्रीम फादर है, क्या पिता कभी बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो हम नहीं कर सके? ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमेशा रखेंगे इजी करने की जो इम्पॉसिबल हो, नहीं। इजी करने की? तो यहाँ पर देखो, फॉर्म ऑफ वर्शिप या फॉर्म द वे टू अटेन गॉड इज सिंपलेस्ट इन कलयुग, ऑल्दो वी आर द मोस्ट डिग्रेडेड, है ना? तो अब देखो, अब एक चीज हम लास्ट करेंगे आज, ठीक है? 4 pillars of dharma are mercy, austerity, truthfulness and purity. Mercy means daya in Hindi. Austerity means tapasya. Truthfulness means satyata, and purity means शुद्धता. शुद्ध, ठीक है? Now first we must understand what dharma is. Dharma is that quality of an entity which cannot be separated from that entity. Example, I will repeat. Dharma is that quality of an entity which cannot be separated from that entity. For example, शुगर का धर्म क्या है? मिठास. आप चीनी से कभी मिठास को दूर कर सकते हो? नहीं. नमक का धर्म क्या है? नमकीन स्वाद देना, है ना? हाँ. नमक का धर्म हुआ नमकीन होना, ठीक है? पानी का धर्म क्या है? लिक्विड में अगर ओरिजिनल देखो वाटर का, तो पानी में क्या होता है? फ्लो होता है ना? अब स्पेसिफिक कंडीशन में पानी बर्फ बन जाएगा और भाप बन जाएगा, है ना? इन स्पेसिफिक कंडीशन वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइस, है ना, व्हेन इट इज फ्रोजन, और इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू steam when boiled. But what is the basic quality, the original quality, original form में उसकी quality क्या है? Liquid. Similarly fire की quality क्या है? Heat and light. ठीक है? ये क्लियर है? धर्म क्या है? यस माता जी. वो चीज जो उस वस्तु से हम अलग नहीं कर सकते. अब अगर हम हमारी बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, आपको पता है हमारा धर्म क्या है? अब आप किसी भी लेवल पे किसी ह्यूमन बीइंग को देखो, वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो कितनी भी हाई पोजीशन पे हो. इफ दैट पर्सन इज सीईओ ऑफ अ कंपनी, देन ही इज सर्विंग द कस्टमर्स. और इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज सर्विंग द नेशन, द कंट्री. Father is working hard for whom? For the family. The children and family. Yes, and mother is working hard for children and family. Children and family. So everybody is serving. So if we talk about that quality of human beings which cannot be separated from us is actually service. ठीक है? इसमें हम आगे करेंगे, मैं तो वैसे ही आपको बता रही हूँ. अभी इसके ऊपर हम आगे डिस्कशंस भी करेंगे और डिटेल में बताऊंगी. बट अभी के लिए आप ये समझो कि धर्म क्या होता है? वो क्वालिटी जो कि इंटीग्रल है उस एंटिटी की, है ना? उसको अलग नहीं कर सकते. बस अभी ये समझो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये जो 4 पिलर्स है धर्म के, ये है मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रुथफुलनेस, प्योरिटी. सो दैट मीन्स टू बी एट द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, we must practice these 4 pillars. अगर एक भी पिलर हमने ब्रेक किया, so that means we are not following dharma. You agree with this? Yes माता जी. ठीक है? तो अब इसमें देखो, अब हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर कलयुग में लोग जो है डिग्रेडेड है ना? धर्म यहाँ रिड्यूस हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ रिड्यूस हो रहा है. तो अब यहाँ देखो, मर्सी कब ब्रेक होगी? मर्सी कब ब्रेक होती है? जब आप when you eat what kind of food? No, meat.
हाँ, नॉन वेजिटेरियन फूड। तो यहाँ पर मर्सी ब्रेक हो गई। इसीलिए हमारा एक प्रिंसिपल क्या है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो उसमें एक हमारा प्रिंसिपल क्या है, दैट वी विल नॉट वेजिटेरियन। ठीक है, अब देखो सतयुग में क्या थे, सतयुग में ऑल 4 पिलर्स वर फॉलोड। ठीक है, मतलब यहाँ पर मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी सब फॉलो करते थे। ओके, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये पिलर्स जो है ये ब्रेक होते रहे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं ऑस्टेरिटी, तपस्या। अब तपस्या ये मैं आपको बताती हूँ, तपस्या ब्रेक कब होती है। देखो तपस्या का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझो तपस्या क्या होती है। आप वॉलंटरीली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि आपको इनकन्वीनियंस दे, बट आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे फास्टिंग। अब जैसे नवरात्रे आ रही हैं, लोग फास्टिंग करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज खाने का मन करता है लेकिन वो नहीं खाते हैं ना, तो उसको तपस्या कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग हमें उठने का मन नहीं करता, एक्चुअली तपस्या के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। आपको पढ़ाई करनी है, आपका एग्जाम है, आपका मन कर रहा है मैं गार्डन जाके खेलूं, बट यू विल नॉट गो आउट, यू विल कंट्रोल योर माइंड एंड यू विल सिट एंड स्टडी। सो इज दैट नॉट तपस्या? बिकॉज थोड़ा आपको इनकन्वीनियंस तो हो रहा है, आप करना कुछ और चाहते हो, बट आप वॉलंटरीली वो चीज कर रहे हो जो आपके आगे बेनिफिट के लिए है। यू अंडरस्टैंड तपस्या? यस माता जी। ठीक है, अब देखो, अब आपने लोगों को देखा है जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, या जो चाय कॉफी भी पीते हैं, वो रह सकते हैं इन चीजों के बिना। फास्टिंग के दिन भी चाय पीते हैं लोग कि नहीं पीते? पीते। तो ऑस्टेरिटी कब ब्रेक होगी? इट ब्रेक्स व्हेन यू टेक इंटॉक्सिकेशन और टी कॉफी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आप डिपेंडेंट हो गए। क्योंकि जब आप किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो क्या होगा, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लॉजिक कनेक्ट हो रहा है? यस माता जी। ठीक है, लेट मी राइट लाइक दिस, व्हेन वन ईट्स, व्हेन वन टेक्स। ओके, अब यहां पर क्या हुआ, त्रेता युग में तपस्या कम होने लगी। ठीक है, तो यहां पर कौन से आ गए, मर्सी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी। ओके, and this is also known as golden age, you can call this silver age. अब नेक्स्ट पर आते हैं, ट्रूथफुलनेस, सत्यता। ये ब्रेक कब होती है, जब हम चीटिंग जब वाले हम काम, झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोलते हैं। तो इट ब्रेक, और झूठ कब बोलते हैं, किसमें होता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, इफ वन एंगेजेस चीटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, राइट। तो आज आप देखते हो इतनी सारी ऑनलाइन गेम्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, यस माता ड्रीम जी। और क्या होता है क्रिकेट की, कुछ ऐसी ऐसी आती है ना कुछ एड्स। यस यस माता जी, बहुत सारी अब आने लगी हैं ऐसी आप जो गैम्बलिंग कराते हैं। हाँ, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अधर्म को फैला रहे हैं, है ना। इसके बाद आता है प्योरिटी। अब प्योरिटी, शुद्धता, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल शुद्धता भी चाहिए और इंटरनल शुद्धता भी चाहिए, पर सबसे ज्यादा प्योरिटी कब खराब होती है, इट ब्रेक्स व्हेन वन एंगेजेस इन, अब उसको कैसे लिखेगा, इलिसिट नहीं लिख रही हूं मैं, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स। ठीक है, इससे शुद्धता खत्म होती है, एंड दैट ऑल्सो वी आर सीइंग। अब आप तो बड़े बच्चे हो, मैं बहुत ज्यादा ऑब्वियसली हम इस पे बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट यू अंडरस्टैंड दिस राइट। यस माता जी। जहां पर गलत रिश्ते बना रहे हैं लोग। ठीक है, अब आप Yes, मैरिज लोग देखो,
वो भी गलत कामों में पड़ जाते हैं, अनमेरिड भी गलत चीजों में पड़ जाते हैं, तो वो सब ऐसी चीजें करने से शुद्धता ब्रेक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ आते हैं हम। अब द्वापर में क्या चीजें रही, यहाँ रही मर्सी और ट्रुथफुलनेस। ठीक है, मतलब शुद्धता भी वहां खत्म हो गई, और इसको एक तरीके से आप कहो ब्रॉन्ज एज, और कलयुग में केवल ट्रुथफुलनेस है, एक लेग बच गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये x 2x 3x 4x हमने देखा था ना, यस माता जी। यहाँ धन का एक ही पिलर फॉलो हो रहा है, यहाँ 2 पिलर फॉलो हो रहे हैं, यहाँ 3 और यहाँ 4, और ड्यूरेशन भी उसी प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यस माता जी। अब बस इसमें देखो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, देखो ये तो टेक्निकलिटीज है हमने आपको बताई, बट हमारे सुप्रीम बेनिफिट के लिए केवल इस डिस्कशन से एक ही टेक अवे है, वो ये है कि कलयुग जितना भी हॉरिबल हो, है ना, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल, अगर हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करनी है तो हमें सिंपलेस्ट चीज भगवान ने प्रोवाइड की है, दैट इज चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड वी मस्ट प्रैक्टिस इट इन आवर लाइफ। बस टेक अवे, आज हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं बेटा, अभी तो हम बहुत सारे टॉपिक्स लाएंगे आप लोग के लिए, लेकिन जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका एक ही समरी, एक ही निकल के क्या होता है, निष्कर्ष एक ही निकल के आता है, कंक्लूजन कि जो हमारे युग धर्म है ना, हम उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। नहीं माता जी, आज तो सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया ना, वेरी गुड, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब इसके थोड़ा थोड़ा और भी आपको कई नई नई चीजें हम बताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसकी पीपीटी मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप बस पीपीटी इसको संभाल करके रखो, और मैं क्या सोच रही हूँ, मैं एक ड्राइव पे भी डाल देती हूँ सारी ना, तो सबका ईमेल क्या होगा कि आप व्हाट्सएप से कभी इधर उधर हो जाए, लेकिन ड्राइव से कभी नहीं जाएगी, तो आपके सबके ईमेल आईडी पे मैं एक्सेस दे दूंगी। ओके है ना, माता जी। तो वो अच्छा रहेगा ना, अगर आपके पास है तो मोबाइल में तो बहुत अच्छा, या लैपटॉप में, लेकिन अगर आपको कहीं भी मिस होती है, और ड्राइव पे तो हमेशा पड़ी रहेगी, आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रेफर देम। ओके माता जी। ठीक है, तो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। नहीं माता जी, आज बहुत अच्छी क्लास लगी मुझे। अच्छा, क्लियर है सब, ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। ओके। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता।